Yes. So in the previous lecture, we have started about the auxiliary products and their elimination, and we have seen what are the auxiliary products, and actually we have seen the process of digestion produces some auxiliary products which are not digested, not absorbed, but these are removed out of the body by defecation. But those food which is digested, once they reach the cell after absorption and after circulation and transportation to the cell. So once inside the cell, should wire should once inside the cell, they are further broken down, they are oxidized, and especially the nitrogenous compound like amino acids and nucleosides, okay, purine, pyrimidines, etc. So they are uh, pr- digested further, oxidized further in the cell, and that is responsible for formation of nitrogenous waste, and this nitrogenous waste is then excreted out of the body. So in excretion or excretory products and their elimination, we will basically study the excretion of nitrogenous waste products which are harmful to our body. So in the major nitrogen wastes are ammonia, urea, and uric acid. Okay, these are the three major nitrogenous waste products. Okay, but ammonia out of this is most toxic and urea is least toxic. So ammonia in some animals is converted into less toxic urea or least toxic uric acid. Okay, so ammonia to urea is it takes place in the liver. It is called ornithine cycle or urea cycle. Okay, so in those animals which cannot afford elimination of ammonia, they remove ammonia, convert ammonia into urea, and urea is excreted out of their body. Or even some animals where there is very scarcity of water, very small amount of water is available, then they even further convert ammonia into uric. So this thing we have done in the previous lecture. Then this is the survey of excretory organs in various grades of animals. So we have seen these are the different types of excretory organs. So in the higher vertebrates or in all vertebrates, kidneys are involved in excretion of nitrogenous waste product. Okay, तो इतना हम लोगों ने कल तक किया था. Do you remember this thing? Yes, sir. Yes, yes, yes. So we'll proceed our lecture for the next discussion. Okay. Okay. So can you see this chart? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So in this chart, you can see in first column there is serial number. In the second column there are characters, and third, fourth, and fifth, last three columns they represent type of mode of excretion and type of animals based on the excretory mode. That is, they if they excrete ammonia as a excretory product, then they are called as a monotelic animal, and the mechanism or mode of excretion is called as ammonotelism. But if they convert ammonia into urea, which is quite less toxic than ammonia, then the mode is called as ureotelism, and the animals are called as uricotelic animal. And even in some animals, if there is conversion of ammonia into uric acid, then the animals are called as uricotelic animal, and the mode of excretion is called as uricotelism. So ammonotelism, ureotelism, and uricotelism, this is the method of their excretion, and the animals are ammonotelic, ureotelic, or uricotelic respectively. Okay, so as we have discussed, the excretory product is ammonia. In case of ammonotelic, they excrete ammonia. They do not convert ammonia into urea or uric acid. Whatever the ammonia that is produced in their body because of the metabolism or cellular oxidation or cellular metabolism of the
amino acids or purine, pyrimidine. Understood? So that ammonia, as soon as they are formed in their body, it is removed out of the body, and that's why the mode is called as ammonotelic, and the animals involved or concerned are called as ammonotelic animals. But in some animals, the ammonia is converted in the liver by urea cycle or ornithine cycle, and the excretory product is urea, and even in some the uric acid. Then which type of habitat? Now the mode of excretion depends on their habitat, means the surrounding area in which the animals live. If the animals are they live or they occur in the water, much of the water is available, then the ammonia is the excretory product, because ammonia, removal of ammonia out of the body, that is excretion of ammonia out of the body, require large amount of water. So those animals which can afford very large amount of water, abundant water, they can excrete ammonia directly. They need not to use energy to convert ammonia into urea. But those animals who occur in the such environment where small amount of water is available, okay, so they convert ammonia into urea with the expenditure of energy, because they do not have very large amount of water available. So ureotelism requires small amount, so less ammonia, less water than that for ammonotelic animal. But in case of uricotelism, removal of uric acid even require very small amount of water. एक्चुअली स्पीकिंग, अगर एक्चुअली स्पीकिंग करना है तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ अगर अमोनिया रिमूव करना है ना, तो लगभग 500 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड. और 1 ग्राम यूरिया अगर एक्सक्रीट करना है तो लगभग 50 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड. एंड 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड अगर एक्सक्रीट करना है तो 10 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड होता है. तो जिनको बहुत ज्यादा वाटर मिलता है वो तो डायरेक्टली अमोनिया वाटर में डिजोल्व करके, क्योंकि वो बाहर का वाटर बॉडी के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि बॉडी के बाहर जो सराउंडिंग है, हैबिटेट है, उसमें बहुत ही वाटर अवेलेबल है. तो दे कैन टेक दैट वाटर एंड दे कैन डिजोल्व द अमोनिया, एंड दैट कैन बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी. ओके, सो बट जिनके पास बहुत ज्यादा वाटर नहीं है और या बहुत कम वाटर नहीं है, जिनके सराउंडिंग में इंटरमीडिएट वाटर है, वो तो यूरियोटेलिज्म करेंगे. और जिनके पास बहुत ही कम वाटर है, जैसे कि अर्बोरियल है, एरियल है जो एनिमल, या जहाँ पे बहुत कम वाटर मिलता है, तो वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे. अंडरस्टूड? तो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर टू रिमूव अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड. सो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एनिमल्स कम वाटर में रहते हैं या कम वाटर उनको मिलता है, मतलब टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन. जो एक्वाटिक है उनको तो बहुत ज्यादा वाटर अवेलेबल है, तो जो टेरेस्ट्रियल है उनको यूरिया या यूरिक एसिड एक्सक्रीट करना पड़ेगा. तो सपोज आपको क्वेश्चन आ गया नीट में एमसीक्यू कि व्हाट इज द टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन. तो टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन में 2 ऑप्शन दिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, और तीसरा ऑप्शन दिया बोथ. तो यू हैव टू सिलेक्ट बोथ. लेकिन एक ही ऑप्शन दिया है यूरिक एसिड और दूसरा ऑप्शन दिया है यूरिया, तो ज्यादा है यूरिक एसिड क्योंकि वो ज्यादा टेरेस्ट्रियल है. तो सपोज एक ऑप्शन है यूरिया, दूसरा ऑप्शन है यूरिक एसिड, तो आपको यूरिक एसिड सिलेक्ट करना है. और दोनों ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन है बोथ, तो आप बोथ सिलेक्ट कर सकते हो. लेकिन यूरिक एसिड एंड यूरिया दोनों में से एक सिलेक्ट करना हो तो ज्यादा टेरेस्ट्रियल कौन सा है? यूरिक एसिड वाला. तो जैसे क्वेश्चन होता है उस वैसे आपको उसका एड्रेस करना पड़ता है. यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. यस. आप थम्स अप कर सकते हैं if you हैव डन विद दिस थिंग. हाँ, जितना मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर आप अभी थम क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में करो. कमेंट सेक्शन में, यस, कमेंट सेक्शन में करो. यस, कम ऑन फास्ट.
ठीक ठीक। देन नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। देखो जो अमोनिया बनता है बॉडी में, जिन एनिमल के बॉडी में, वो तो एक तो वो बॉडी के सरफेस से डायरेक्टली रिमूव करते हैं, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर अमोनिया बनता है, बॉडी के बाहर जो वाटर है उनमें कम अमोनिया होता है, तो अमोनिया विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम विद इन द बॉडी टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी, एंड दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन बॉडी सरफेस से होता है, या फिर उनके पास कोई गिल्स है, फॉर एग्जाम्पल इन फिश, ओके, तो उनके गिल्स में से भी बाहर आता है अमोनिया, लेकिन दैट इज बाय डिफ्यूजन, दैट इज नॉट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दैट इज बाय सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन अमोनिया NH3 एज NH3 एक्सक्रीट नहीं होता, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ NH4+, दैट इज अमोनियम आयन। अमोनिया इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन, NH4+। देन यूरियोटिलिक में क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन? अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, हमने देखा ये, और जो ब्लड में रिलीज होता है, लीवर में यूरिया बनता है, लीवर से वो रिलीज होता है ब्लड में, फिर ब्लड फिल्टर होता है किडनी में, और किडनी से वो बाहर जाता है यूरिया, ओके। और यूरिकोटेलिक जैसे कि उस दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और पैलेट, क्योंकि वो बहुत कॉन्सेंट्रेट रहता है, क्योंकि 1 ग्राम के लिए सिर्फ 10 ml वाटर सफिशियंट है उसको डिजॉल्व होने के लिए, मतलब बाहर फेंकने के लिए, तो वो ज्यादा थिक नहीं रहता, मतलब थीन नहीं रहता, पतला डाइल्यूट नहीं रहता, तो उसमें वाटर बहुत कम होता है, तो पेस्ट और पैलेट। तो अमोनिया टॉक्सिक है, हाईएस्ट टॉक्सिक है। देखो कि अमोनिया सब में, चाहे वो यूरियोटेलिक हो, या हो यूरिकोटेलिक, या हो अमोनोटेलिक, सब में तो पहला अमोनिया ही बनेगा। लेकिन अमोनिया सबसे टॉक्सिक है, तो जैसे ही बॉडी में फॉर्म हुआ है ना, तो एक तो उसको लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहिए, मतलब यूरिया में या यूरिक एसिड में, या तो फिर उसको इमीडिएटली बाहर एक्सक्रीट करना चाहिए, ओके। तो एनिमल के पास 2 चॉइस है, 2 ऑप्शन है। अमोनिया बना तो एनिमल के पास दो ऑप्शन, हर एनिमल में अमोनिया बनेगा ही बनेगा, ओके। तो अमोनिया बना तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो फिर उसको इमीडिएटली वो एक्सक्रीट कर सकता है बाहर, या फिर उसको बना सकता है लेस टॉक्सिक में यूरिया या यूरिक एसिड। लेकिन अगर उसको यूरिया बनाना है या यूरिक एसिड बनाना है तो उसको एनर्जी लगेगी, एटीपी लगेगी, लेकिन मतलब उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, एटीपी एक्सपेंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके पास बहुत ज्यादा वाटर अवेलेबल है तो वो एटीपी वेस्ट नहीं करेगा, वो वाटर लेगा और वाटर से उसमें डिसॉल्व करेगा और उसको बाहर एक्सक्रीट कर लेगा, अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज अमोनिया को स्टोर नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज वेरी टॉक्सिक। हाँ, कुछ देर यूरिया और यूरिक एसिड को बॉडी में स्टोर किया जा सकता है, लेकिन अमोनिया जैसे ही बनता है, या फिर उसको डायरेक्टली एक्सक्रीट करना पड़ेगा एज सुन एज पॉसिबल, या तो उसको लेस टॉक्सिक यूरिया या यूरिक एसिड, जिनको जो अमोनिया से कम टॉक्सिक है लेकिन लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, सो दे कैन बी स्टोर्ड टेम्पररली, ओके, दे कैन बी स्टोर्ड टेम्पररली। तो अगर वाटर बहुत अवेलेबल है देन वो एटीपी यूज नहीं करेंगे, यूटीपी वेस्ट नहीं करेंगे, they will use the water and they will remove the ammonia as soon as it is formed in the body, okay। so because ammonia को तुरंत remove करना जरूरी है, because it is very toxic to the body। and यूरिया थोड़ा यूरिक एसिड से कम टॉक्सिक है, और सबसे कम टॉक्सिक है यूरिक एसिड। इन तीनों में, मतलब यूरिक एसिड टॉक्सिक है लेकिन इन तीनों में सबसे कम टॉक्सिक है। ऐसा नहीं कि यूरिक एसिड बिल्कुल टॉक्सिक नहीं है, तो उसको हमेशा बॉडी में नहीं रह सकते, अमोनिया से और यूरिक एसिड से ज्यादा टाइम रख सकते हैं बॉडी में, लेकिन उसको भी आफ्टर सम टाइम दैट इज टू बी डिस्चार्ज आउट ऑफ द बॉडी, ओके। नाउ द लास्ट पार्ट विल बी द एग्जांपल्स। अभी कौन कौन से एनिमल अमोनोटेलिक में आएंगे, यूरियोटेलिक में एंड यूरिकोटेलिक में। सो फर्स्ट लेट अस सी अमोनोटेलिक एनिमल। तो एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट जो हम लोगों ने सब देखे, नॉन कॉर्डेट्स, ओके, पोरीफेरा से कहाँ तक, हेमिकॉर्डेटा तक, वो सब एक्वाटिक एनिमल्स है और नॉन कॉर्डेट्स है। और उनको ही जो वर्टिब्रेट जो है ना, वो उसमें से कुछ एक्वाटिक होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं,
लेकिन जो भी इनवर्टिब्रेट्स या सारे नॉन कॉर्डेट्स है वो एक्वाटिक, तो मोस्टली एक्वाटिक, तो दे रिमूव द वाटर विद द हेल्प ऑफ, सॉरी, अमोनिया विद द हेल्प ऑफ वाटर। हाँ, उसमें सपोज अभी ये है एस्केलमेंथिस है तो एक्वाटिक नहीं है, और ये एनिलिडा है वो एक्वाटिक नहीं है। मतलब जब अर्थवर्म की बात करें फॉर एग्जांपल एनिलिडा, तो जब वो ज्यादा पानी मिलता है, उसको रेन होता है, बारिश गिरती है, तो अमोनिया रिमूव करते हैं। लेकिन अगर पानी कम मिलता है इसको एनिलिडा को या अर्थवर्म को, तो वो यूरिया रिमूव करता है। लेकिन यू डोंट हैव टू गो इनटू दैट मच डिटेल, जस्ट कीप इन माइंड एक्वाटिक जो भी इनवर्टिब्रेट पानी में रहते हैं वो सब इनवर्टिब्रेट रिमूव करेंगे अमोनिया। टेलियोस मतलब बोनी फिश, बोनी फिश को ही टेलियोस बोलते हैं। तो मेनी बोनी फिश, एक्वाटिक इंसेक्ट्स और टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स अलग है। ओके, इधर ये दिए है वो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स है यूरिकोटेलिक में, और इधर है जो पानी के अंदर जो इंसेक्ट होते हैं वो एक्वाटिक एम्फीबिया मतलब क्या? एम्फीबिया तो पानी में भी होता है और लैंड पे भी होता है, लेकिन जब वो उसका टैडपोल है, लार्वी है, it live in the water, so that is called as earlier stage of the amphibia. Okay, so for example वो tadpole जो है frog का, तो that remove ammonia because that live in the water. Okay, mammals जो भी है, aquatic mammals है तो भी, okay, जो भी mammals है वो सब mammals यूरिया एक्सक्रीट करेंगे। मरीन फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस, अभी देखो कि मरीन में दोनों टाइप के फिशेस होते हैं, बोनी फिशेस भी होते हैं और कार्टिलेजिनस भी फिशेस होते हैं। लेकिन समुद्र में जो कार्टिलेजिनस फिश होते हैं, जैसे कि स्टिंगरे है, स्कॉलिडॉन है, डॉग फिश है, ओके, कैरकेराडॉन है, सो ऑल द मरीन कार्टिलेजिनस फिशेस दे एक्सक्रीट यूरिया। एंड जो फ्रॉग्स या टोड्स है जो लैंड पे पाए जाते हैं, सो लैंड एम्फीबिया, टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया, दे एक्सक्रीट यूरिया। एंड बर्ड्स है, लैंड टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स है, लैंड स्नेल है, सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेप्टाइल्स जो होते हैं वो सब यूरिक एसिड रिमूव करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक एनिमल। ओके, सो मैंने इधर नोट किया है कि यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म, these are the adaptations for water conservation. Is it clear to you? Have you understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. आगे जाते हैं। Now we'll start the human excretory system. तो अगर आपको अभी तक का सब क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हैं, या कोई आपको डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सो यस, कम ऑन, फास्ट, वी डोंट हैव मच टाइम टू वेस्ट। यस, कम ऑन फास्ट। और प्लीज इधर करो, ये कमेंट सेक्शन में करो, इधर भी कर सकते हैं आप जो नीचे आपके है, लेकिन कमेंट सेक्शन में करो। ओके, सबको कोई ना कोई रिप्लाई देना है। किसी को कुछ चाहिए मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज यस। Yes. So, are you ready to study the human excretory system? Yes, sir. Yes, sir. Sure. Good. देखो, आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर में जितना हो सके हम लोग कंप्लीट करेंगे, और जो बचा हुआ टॉपिक, जो चैप्टर रहेगा या जो टॉपिक्स रहेंगे, दैट वी विल स्टार्ट आफ्टर योर रीस्टार्ट। अंडरस्टूड? when we'll resume after the वैकेशन। मतलब अभी आपको वैकेशन है ना, पता है ना, फ्राइडे तक लेक्चर है, उसके बाद आपको कुछ हफ्ते का वैकेशन है स्टडी करने के लिए। Yes, sir. Yes, okay, done. So now we'll see the human excretory system. देखो, ह्यूमन की जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो है, उसमें क्या क्या होता है? 1 पेयर ऑफ किडनीज होती है, 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड 1 यूरेथ्रा होता है। सो 4 कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, 1 किडनी और 1 यूरेथ्रा, 1 ब्लैडर और 2 यूरेटर्स, सॉरी 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा होता है। ओके,
So these are the components of human excretory system. So can you see this diagram? थोड़ी सी blur है, चेंज नहीं हुआ ना? No, sir. No, sir. No, sir. Wait, आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So this is human excretory system. थोड़ा सा ब्लर हुआ है क्योंकि जो फोटो निकाल के यहाँ पे डालते हैं ना और उसका पीडीएफ बनाते हैं ना, तो ये थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, ठीक है, लेकिन आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो. This is the human देखो क्या क्या दिख रहा है आपको. ये किडनीज है, दो साइड, दो, ये दो यूरेटर्स दिख रहे हैं आपको. ये यूरिनरी ब्लैडर है और सिंगल यूरेथ्रा है. ओके, सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ यूरिनरी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. इज इट डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आप देख सकते हो कि जो राइट वाला किडनी है, इस साइड वाला किडनी है, वो राइट किडनी है. दिस इज द राइट किडनी. ओके, दिस इज द राइट किडनी. और दिस विल बी द लेफ्ट किडनी. तो यू कैन सी इन द डायग्राम कि राइट वाला जो किडनी है वो थोड़ा सा नीचे है, राइट, थोड़ा सा नीचे है. दोनों एक लेवल पे नहीं, थोड़ा सा नीचे है राइट किडनी. क्यों? क्योंकि राइट साइड पे क्या होता है, लीवर होता है. लीवर होता है ना राइट साइड पे, तो लीवर की वजह से राइट वाला किडनी थोड़ा सा नीचे होता है. ओके, तो नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे हम लोग. कैन यू सी दिस डायग्राम? वेट, चेंज नहीं हुआ है अभी. कैन यू सी नाउ? Yes, sir. Sir. यस. देखो, ये जो राइट वाला किडनी है वो थोड़ा सा लोअर पोजीशन पे है और लेफ्ट वाला किडनी है थोड़ा सा अपर पोजीशन पे है. दोनों किडनी के ऊपर ये ट्रायंगुलर शेप आपको दिख रहा है, एड्रिनल ग्लैंड. एक्चुअली दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, बट दे आर प्रेजेंट ऑन द एट द टॉप ऑफ द किडनी. दोनों किडनी के टॉप पे है, इसलिए डायग्राम में हम लोग को दिखाना होगा, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, सो किडनीज क्या है? देखो, किडनीज क्या है? किडनीज आर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन. मेन है क्योंकि उस पूरे एक्सक्रीशन में जो मेन काम करेंगे, मेन जो रोल होगा तो किडनी का होगा. ओके, वो यूरिन फॉर्म करते हैं, क्योंकि जो मैंने बोला कि जो ब्लड होता है, देखो क्या होता है कि हर सेल जो होता है बॉडी का, वो अमीनो एसिड को एंड प्यूरिन pyrimidine मतलब नाइट्रोजन बेस को मेटाबोलाइज करता है और उससे अमोनिया बनाता है. फिर वो अमोनिया जो होता है वो जाता है लीवर के पास. लीवर उस अमोनिया को यूरिया बनाता है. ओके, और यूरिया बनाने के बाद लीवर डिस्चार्ज द यूरिया इनटू द ब्लड. बाद में वो ब्लड सर्कुलेट करके करके किडनी के पास आता है. दोनों किडनी के पास, किडनी के अंदर ब्लड का होता है फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन करके उसके बाद होता है यूरिन. सो यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द किडनी. हम लोग देखेंगे पूरा मैकेनिज्म, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, बट एट दिस मोमेंट यू जस्ट कीप इन माइंड कि ये किडनी है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और इसका फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन. वन पैर. शेप कैसा है किडनी का? दोनों किडनी का शेप बीन शेप होता है ना, बीन शेप, बीन होती है ना, इससे बीन शेप होता है ऐसा. सो द शेप ऑफ द किडनी, बोथ किडनी इज बीन शेप. और किडनी का कलर कैसा है? रेडिश ब्राउन है, रेडिश ब्राउन कलर. इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर. T12 to L3 क्या होता है? इसका पोजीशन. पोजीशन पोजीशन मतलब क्या कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम की जो पहले वर्टिब्रे उसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे, व्हिच आर प्रेजेंट इन द नेक रीजन. उसके बाद थोरैसिक वर्टिब्रे होते हैं. थोरैसिक वर्टिब्रे 12 होते हैं, T1 T2 से लेके T11 T12 तक. उसके बाद होते हैं लंबार वर्टिब्रे. ओके, तो लास्ट वाला थोरैसिक वर्टिब्रा जो है उसको बोलते हैं T12 थोरैसिक वर्टिब्रा, एंड
थर्ड लंबार वर्टिब्रा है उसको बोलते हैं L3, दैट इज लंबार वर्टिब्रा नंबर 3. सो T12 मतलब थोरैसिक वर्टिब्रा 12 एंड L3 मतलब लंबार वर्टिब्रा 3. इस पोजीशन में किडनी होते हैं. ओके, सो देयर लोकेशन इज फ्रॉम T12 टू L3, थोरैसिक वर्टिब्रा नंबर 12 टू लंबार वर्टिब्रा नंबर 3. ये पोजीशन है. इधर ये एक वर्ड है रिट्रोपेरिटोनियल, इसका इंपॉर्टेंट किसी कोई बता सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिट्रोपेरिटोनियल? एनीबॉडी कैन टेल मी? कोशिश करो, गलत हो गया तो मैं हूं आपके साथ. आपको इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सब लोग नहीं बोल रहे हैं. अभी तक मैंने जो बोला किडनी के बारे में, हैव यू अंडरस्टूड? उसका T12 L3 पोजीशन, रेडिश ब्राउन कलर, बी शेप. Yes, Done or sir. not? yes sir, clear है. ओके, यस यस. तो मुझे ये इतना ये तो इजी वाला था. अभी रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या है, कोई बताएगा? रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या होता है? ओके, पेरिटोनियम का मतलब क्या होता है? देखो, पेरिटोनियम का मतलब क्या होता है, देखो कि हम्म, ठीक है, ब्लैंक शीट देख रहे हैं आप? Yes, sir. yes sir, देखो, ये हमारा हेड है, ये हमारी नेक है, ये हमारा क्या है, ट्रंक है, राइट? ये पैर है, ये हाथ है. तो ये इधर है, ये थोरैक्स है, ये थोरैक्स है, राइट? और ये है एब्डोमेन. इतना क्लियर? yes sir, Yes, sir. एक्चुअली बॉडी का कैविटी एक ही होता है, पूरा अंदर का कैविटी. उस कैविटी को ही बोलते हैं पेरिटोनियम. व्हाट इज पेरिटोनियम? पेरिटोनियम का मतलब है बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी. क्लियर? और ये yes sir, पेरिटोनियम के दो पार्ट है बिकॉज ऑफ डायफ्राम. ये डायफ्राम ने ये पेरिटोनियम के मतलब बॉडी के कैविटी के दो पार्ट बनाए हैं. डायफ्राम डिवाइड द बॉडी कैविटी और पेरिटोनियम इनटू टू पार्ट. अपर की कैविटी को बोलेंगे थोरैसिक कैविटी और लोअर की कैविटी को बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी. क्लियर? Yes, sir. yes Yes, sir, sir. ओके, एक मिनट है, एक मिनट. ठीक है, ठीक है. तो दोनों पेरिटोनियल कैविटी है. पता है कि जो कैविटी है ना, उसके अंदर की जो लाइनिंग है उसको पेरिटोनियल मेम्ब्रेन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? देखो, ये कैविटी है बॉडी की, उसके अंदर की जो लाइनिंग है ना, अंदर का जो वॉल है बॉडी कैविटी का, उसको पेरिटोनियल कवरिंग बोलेंगे या पेरिटोनियल मेम्ब्रेन बोलेंगे. यू अंडरस्टैंडिंग? yes sir, Yes, ये sir. ये कैविटी का अंदर का जो लाइनिंग है, बाहर का लाइनिंग उसको बॉडी सरफेस बोलेंगे ना. तो अंदर का जो सरफेस है, ये कैविटी के अंदर का सरफेस है, उसको बोलेंगे पेरिटोनियल मेम्ब्रेन. अंडरस्टूड? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन. ओके. तो देखो कि ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये सपोज अब इससे हेड है और ये ऐसे, ये इधर नेक है. ये वर्टिब्रल कॉलम ऐसे स्टार्ट हुआ, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ये थोरैसिक वर्टिब्रा है, राइट? ये वर्टिब्रल कॉलम है. ये साइड से खड़ा है. हाँ, ये साइड से खड़ा है आदमी. आपको पता चल रहा है ना? yes sir, Sir. देखो, ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम है. तो ये है, ये हम लोग मान सकते हैं ये
ये क्या है? ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, ये पेरिटोनियम है, मतलब चाहे वो थोरैक्स हो या ये एब्डोमिनल हो। अंडरस्टूड? ये है पेरिटोनियम कैविटी। ये है पेरिटोनियम और ये है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। तो ये किडनी होते हैं ना, किडनी, वो पेरिटोनियम कैविटी के अंदर नहीं होते, वो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के बाहर, और ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के बाहर, मतलब पेरिटोनियल कैविटी के बाहर और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, इधर किडनी होंगे, इधर। किडनी है ये। अभी एक दिखा रहा हूं कि दूसरी साइड दूसरी है। अंडरस्टूड? Yes, sir. sir, किडनी कहाँ है? पेरिटोनियम के आगे है या पीछे है? बैक साइड पे है ना? Yes, Yes. sir. बैक साइड ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के बैक साइड पे है किडनी। देखो, मेट्रो, मेट्रो वर्ड तो आपने सुना होगा, क्योंकि जैसे बड़े बड़े शहर है, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, उनको मेट्रो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मेट्रो? क्योंकि वो सिटी जो है वो अभी एडवांस सिटी है ना, बहुत एडवांस है, उसको मेट्रो बोलते हैं। और अगर आपने सुना होगा कोई कोई जुने मतलब पुराने जमाने का कोई गाना है, क्लासिक सॉन्ग है, ओके, जैसे कि कोई इसका है, मोहम्मद रफी वाला कोई सॉन्ग है, या कोई मतलब पुराना वाला है सॉन्ग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट्रो सॉन्ग बोलते हैं ना, रेट्रो। Yes, sir. तो रेट्रो का मतलब होता है पीछे वाला, पीछे मतलब पुराना या पीछे, इधर पीछे मान सकते हैं। तो रेट्रो पेरिटोनियम मतलब क्या? बैक साइड ऑफ द पेरिटोनियम। बैक साइड ऑफ द पेरिटोनियम मतलब इसका मतलब क्या होता है? रेट्रो पेरिटोनियम। क्या होता है? रेट्रो पेरिटोनियम। क्लियर हो गया अभी आपको? Yes, Yes, sir. sir. अभी भूलोगे कभी? कभी भूलोगे No, क्या? sir. हाँ, No, sir. No, रेट्रो sir. पेरिटोनियम, हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, रेट्रो पेरिटोनियम। ओके, देखो मैं आपको अभी कोशिश करूंगा दिखाने की। देखो, देखो, यस, देखो, ऐसे हम लोग हाथ हाथ पकड़ते हैं ना, ऐसे हाथ पकड़ते हैं ना, ऐसे ऐसे, देखो। तो ये Yes, अगर sir. ऐसे पोजीशन पे है और ऐसे इधर हाथ पकड़ गई, तो हाथ के बिल्कुल नीचे जो किडनी है आपके, बिल्कुल नीचे क्या होगा? किडनी होगा। राइट? अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, तो किडनी बैक साइड है, डॉर्सल साइड है, वेंट्रल साइड नहीं है किडनी। किडनीज आर ऑन डॉर्सल साइड, नॉट ऑन वेंट्रल साइड। तो देखो, कोई भी ना किडनी में कोई डैमेज है, किडनी में कोई इंफेक्शन है या कोई स्टोन हुआ है ना, तो आपको यहाँ से पीछे से पेन आएगा, आगे तक पीछे से आएगा। ठीक है ना? Yes, sir. क्लियर? इतना क्लियर सबको? Yes, sir. एक मिनट, अब भाई सुनो, ओए, चलो रुमाल देना, टिश्यू दे, रुमाल। 1 सेकेंड, एक्सक्यूज मी, टिश्यू देना जरा। ओके, इज इट डन? क्लियर? इतना क्लियर सबको? Yes, sir. yes, sir, गुड, गुड, ओके। देखो, ओके, किडनी के बाद, एक्चुअली किडनी की बात हम लोग डिटेल में बाद में करेंगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा हमें। हम बाकी का जान लेते हैं अभी। यूरिनरी ब्लैडर, देखो ये यूरेटर दिख रहा है, यूरेटर। किडनी के बाद क्या है? दो किडनी है तो दो यूरेटर है, राइट? दो किडनी है तो दो यूरेटर है। ओके, तो दो यूरेटर किडनी से निकलते हैं, और यूरेटर का जो लेंथ होता है वो अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ओके, देयर लेंथ। और उनका फंक्शन एक ही है,
जो किडनी के अंदर यूरिन फॉर्म होता है उसको ट्रांसपोर्ट कराना है और ब्लैडर के अंदर ट्रांसपोर्ट कराना है उसको। ओके, सो दे ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर और उनका लेंथ है 25 to 30 सेंटीमीटर। ये यूरिनरी सॉरी ये जो यूरेटर है ना, ये यूरेटर के अंदर एक स्पेशल टाइप के इपिथेलियम होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल इपिथेलियम। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल इपिथेलियम। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांजिशनल ट्रांजिशनल। क्यों? epithelium. वो स्ट्रेचेबल इपिथेलियम है, क्योंकि अगर ज्यादा मतलब यूरिन आ रहा है उससे तो स्ट्रेच होना चाहिए उसका वॉल, तो स्ट्रेचेबल इपिथेलियल सेल्स टिश्यूज है, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशनल इपिथेलियम है। एंड ट्रांजिशनल इपिथेलियम इज लाइन सॉरी दैट इज यूरेटर्स आर लाइन इंटरनली बाय ट्रांजिशनल इपिथेलियम। ओके, उसके बाद आया ब्लैडर। तो ब्लैडर एक बैग जैसा है, ब्लैडर का सिंगल है, ब्लैडर का नंबर एक ही ब्लैडर है। उसका शेप कैसा होता है? पायरीफॉर्म शेप होता है। ओके, जब उसके अंदर यूरिन नहीं है, शेप दो टाइप के शेप होते हैं उसके। जब उसके अंदर यूरिन नहीं है तो पायरीफॉर्म है, और जब उसके अंदर यूरिन भर गया तो ये ओवल बन जाएगा, ओवाइड बन जाएगा, फूल जाएगा। यू अंडरस्टैंडिंग? दैट विल बिकम ओवाइड इन शेप। ओके, तो उसके अंदर कितना ये इट कैन स्टोर द यूरिन, कितना स्टोर यूरिन कर सकता है? नॉर्मली 500 ml to 700 ml ये यूरिन भर सकता है। ओके, तो जब भी उसका 50% मतलब जब भी एक नियर अबाउट 300 ml तक यूरिन अगर उसके अंदर भर गया तो क्या होगा? हमें फीलिंग होगी कि अभी यूरिनेशन मिक्चुरेशन मतलब यूरिनेशन करना है, यूरिन को बाहर निकालना है। ओके, when the bladder is filled by 50% urine approximately, मतलब लगभग 300 ml 250 300 ml तक अगर उसके अंदर यूरिन हो जाता है, जमा हो जाता है, स्टोर एक्यूरेट हो जाता है, तो देयर इज अ फीलिंग ऑफ, बिकॉज क्या होता है कि उसका जो देखो कि ये जो ब्लैडर है ना, ब्लैडर के अंदर की जो लाइनिंग है वो भी ट्रांजिशनल इपिथेलियम से ही बनी है। मतलब यूरेटर्स आर लाइन बाय ट्रांजिशनल इपिथेलियम, ब्लैडर इज आल्सो लाइन बाय ट्रांजिशनल इपिथेलियम। यहाँ की वो जो यूरेथ्रा है वो यूरेथ्रा भी ट्रांजिशनल इपिथेलियम से अंदर की लाइनिंग है। तो यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, these parts are internally lined by transitional epithelium, stretchable epithelium। किडनी के अंदर भी थोड़ा सा हिस्सा होता है, उसको रेनल पेल्विस बोलते हैं। आपको पता होगा नहीं पता होगा, मैं आपको समझाऊंगा बाद में। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि किडनी के अंदर जो रीनल पेल्विस होता है, रीनल पेल्विस, यूरेटर, bladder and urethra, they all are internally lined by transitional epithelium। ये जो ब्लैडर है, ब्लैडर का भी स्मूथ मसल है। देखो यूरेटर का अंदर का लाइनिंग है ट्रांजिशनल इपिथेलियम, और उसके बाद क्या है? वो मसल है। कौन सा मसल है? स्मूथ मसल है। ओके, स्मूथ मसल है। और ब्लैडर का जो ब्लैडर के पास स्पेशल टाइप ऑफ स्मूथ मसल है, उसको बोलते हैं डेट्रूजर मसल। डेट्रूजर मसल वो भी स्ट्रेचेबल होता है। So smooth muscles of urinary bladder is also called as detrusor muscle because it is stretchable। लिखा है इधर मैंने detrusor muscle। और ये जो उसके अंदर ना स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। detrusor muscle के अंदर क्या होते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर। तो जैसे ही 50% अप्रोक्सीमेटली ये ब्लैडर यूरिन से भर जाता है तो हमें फीलिंग आती है यूरिनेशन की, मिक्चुरेशन की। देयर इज अ अर्ज टू पास यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। ओके, तो क्या होता है देखो कि जब इनिशियली जब अप्रोक्सीमेटली 50% वो ब्लैडर मतलब भर जाता है यूरिन से, तो ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं कि बाबा अंदर यूरिन का वॉल्यूम बढ़ रहा है, अभी उसके कैपेसिटी के बाहर हो रहा है। तो ब्रेन को मैसेज जाता है, क्योंकि ये रिसेप्टर सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी सेल्स है, तो उनसे सेंसरी न्यूरॉन जुड़े हुए होते हैं। और सेंसरी न्यूरॉन का जो एंड होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जाता, सॉरी ब्रेन के अंदर जाता है। ओके, प्रेशर रिसेप्टर कहाँ पे प्रेशर कहाँ पे सेंस होता है ब्रेन में? किसको पता है? Which part of the brain is involved in interpretation of the pressure? ब्रेन को किस हिस्से को प्रेशर समझ में आता है? टच प्रेशर। यस, एनीबडी?
parietal lobe, parietal lobe पता है ना आपको, parietal lobe? Hello, are you there or not? Yes, sir. Harsh, Ritesh, Ishani, Swati, are you there? Yes, sir. देखो, Yes, sir. घबराओ मत, घबराओ मत। देखो, आपको नहीं हुआ होगा या अभी याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको ये नर्वस सिस्टम भी मैं लेने वाला हूँ। देखो कि ब्रेन जो होता है ना, उसमें एक टेम्पोरल लोब होता है, सॉरी पैराइटल लोब भी होता है। तो पैराइटल लोब के अंदर ये न्यूरॉन्स जाते हैं, ओके, और हमें पता चलता है कि बाबा उधर प्रेशर बढ़ गया है इसके अंदर, ब्लैडर के अंदर। तो जैसे ही ब्लैडर के अंदर का प्रेशर बढ़ता है तो हमें रियलाइज हो जाता है कि यूरिन पास करना है। तो ये जो यूरेथ्रा है ना, ये यूरेथ्रा के मसल भी है, स्मूथ मसल, और उसके अंदर भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, और उसके पास दो प्रकार के स्पिंक्टर होते हैं। स्पिंक्टर आपको पता है, वॉल जो होते हैं ना वो एक ही डायरेक्शन में खुलते हैं, वॉल ओपन इन वन डायरेक्शन, बट स्पिंक्टर कैन ओपन इन बाय डायरेक्शन। दो प्रकार के स्पिंक्टर होते हैं ये यूरेथ्रा के अंदर। एक होता है इंटरनल स्पिंक्टर जो यूरेथ्रा के स्टार्टिंग में होता है, और लगभग यूरेथ्रा के लास्ट मतलब एंड पार्ट में होता है एक्सटर्नल स्पिंक्टर। तो ये जो इंटरनल स्पिंक्टर जो है ना वो इनवॉलंटरी है, ओके, इनवॉलंटरी है। मतलब क्या है कि वो हमारे विल पावर से हम लोग उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। वो तो इधर यूरिन मतलब ज्यादा जमा हो जाएगा तो ये खुल जाएगा, लेकिन जो बाहर वाला जो ये होता है ना, स्पिंक्टर होता है, वो वॉलंटरी होता है। मतलब क्या है कि अभी हमें बहुत ही अर्जेंसी हो रही है कि यूरिन पास करना है, लेकिन हम ऐसे जगह पे है जहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। तो हम लोग कुछ देर तक ये हम लोग संभाल सकते हैं, ओके। उसको ये जो वॉलंटरी स्पिंक्टर है ना, ओपन वाला, बाहर वाला मतलब यूरेथ्रा के एंड वाला, उसको कंट्रोल करके हम लोग रख सकते, मतलब ये सिचुएशन कुछ देर तक हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ज्यादा टाइम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बाद में पेनिंग शुरू हो जाता है और दिक्कत आ जाती है बहुत, ओके। तो ये तो मैंने आपको यूरेथ्रा के बारे में पूरा आपको बोल दिया। ये यूरेथ्रा जो है ना, ये फीमेल में शॉर्ट होता है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है यूरेथ्रा में, और मेल में तो यूरेथ्रा पासेस फ्रॉम द पेनिस एंड दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट लॉन्ग, अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर इन लॉन्ग। यूरेथ्रा तो अलग अलग लेंथ का होता है। तो मेल जो होता है, मेल में यूरेथ्रा मतलब यूरिनरी ओपनिंग, यूरिनरी डक्ट, और ये जेनाइटल डक्ट मतलब जिससे सीमेन भी बाहर आता है, सीमेन उसमें स्पर्म्स होते हैं। तो यूरेथ्रा इज अ सिंगल आउटलेट फॉर सीमेन एंड यूरिन। तो इसलिए उसको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरेथ्रा इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट या ट्रैक्ट इन मेल। लेकिन फीमेल में अलग है, फीमेल में वाजाइनल ओपनिंग इज डिफरेंट एंड यूरेथ्रल ओपनिंग इज डिफरेंट। सो उसको सिर्फ यूरेथ्रल डक्ट ही बोलेंगे फीमेल में, because urethra and vaginal opening is not the same in female, okay। रिप्रोडक्टिव ओपनिंग अलग है, मतलब vaginal ओपनिंग अलग है, यूरेथ्रल ओपनिंग अलग है, डक्ट अलग है। तो यूरेथ्रा इज अ कॉमन फॉर डिस्चार्ज ऑफ सीमेन एंड डिस्चार्ज ऑफ यूरिन, मिक्चुरेशन और यूरिनेशन। सो मेल में तो उसको बोलेंगे यूरिनोजेनाइटल सिस्टम या यूरोजेनाइटल सिस्टम, लेकिन फीमेल में उसको सिर्फ यूरिनरी डक्ट ही बोलेंगे, यूरिनरी सिस्टम ही बोलेंगे। इज इट क्लियर टू यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, इतना क्लियर है तब थम्स अप कर सकते हो फास्ट। सर मेल में क्या बोलेंगे? इज इट डन? हाँ नीना, आपने कुछ पूछा क्या? वो सर फीमेल में तो हम बोलेंगे, मेल में क्या बोलेंगे देखो, इसको? मेल में क्या होता है, जो यूरेथ्रा होता है ना वो पेनिस से पास होता है ना पूरे, तो उसका लेंथ ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। फीमेल में तो 4 सेंटीमीटर ही होता है लेंथ उसका। तो मेल में वो सीमेन मतलब जिसमें स्पर्म होता है वो भी कैरी करता है इजैकुलेशन के टाइम, और यूरिन भी कैरी करता है यूरिनेशन के टाइम। मतलब वो कॉमन पैसेज है फॉर यूरिन एंड सीमेन। तो उसको बोलेंगे यूरिनोजेनाइटल, जेनाइटल रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव, ओके, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलेंगे या डक्ट बोलेंगे।
लेकिन फीमेल में वजाइनल ओपनिंग अलग है, वजाइनल पैसेज अलग है और यूरिनरी पैसेज अलग है, मतलब यूरेथ्रा एंड वजाइनल पैसेज अलग है, तो उसको सिर्फ यूरिनरी डक्ट बोलेंगे फीमेल में। इज इट डन? Yes, sir. गुड, ओके। किडनी के बाद किडनी के लिए आप बाद में आते हैं, ये बाद में आते हैं हम लोग। ये देखा, ये मैंने आपको क्लियर करवाया, पायरिफॉर्म सिंगल स्टोर यूरिन ओवाइड व्हेन फुल्ली, ये सब देखा। हाँ, मिक्सचुरेशन मतलब वॉलंटरी यूरिनेशन। देखो, जब ब्लैडर 50% भर जाता है यूरिन से, तो ब्लैडर के वॉल में जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और वो सेंसरी इंपल्स सिग्नल भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन को, ब्रेन के पैराइटल लोब को। पैराइटल लोब में जो उसको डिटेक्ट किया जाता है और बाद में उसको मोटर न्यूरॉन मोटर सिग्नल भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और वो मोटर इंपल्स आते हैं ब्लैडर के स्मूथ मसल पे, ब्लैडर का मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, तो जब यूरिनेशन होना है ना, यूरिन बाहर निकालना है, उसको बोलेंगे यूरिनेशन या मिक्सचुरेशन। तो जब मिक्सचुरेशन होना है, यूरिनेशन होना है, वॉलंटरी यूरिनेशन होना है, तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन यूरेथ्रा जो है ना, यूरेथ्रा वो रिलैक्स होना चाहिए। यू अंडरस्टैंडिंग? ब्लैडर मसल, एमएस मतलब मसल, एमएस का मतलब है, एमएस मतलब मसल। तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और जो स्पिंक्टर है ना यूरेथ्रल, मतलब इंटरनल स्पिंक्टर, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर, ये क्या होना चाहिए? रिलैक्स होना चाहिए। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ओके, एंड व्हेन ब्लैडर रिलैक्स, ये ब्लैडर जब रिलैक्स है एंड स्पिंक्टर कॉन्ट्रैक्टेड है ना, स्पिंक्टर जब कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या यूरिनेशन होगा क्या? No, ब्लैडर sir. रिलैक्स, स्पिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये होगा क्या यूरिनेशन? No, sir. नो यूरिनेशन। तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लैडर का यूरिन मतलब बाहर की तरफ जाएगा, लेकिन तभी स्पिंक्टर रिलैक्स होने चाहिए। स्पिंक्टर वही क्लोज रहेंगे तो क्या होगा? यूरिनेशन नहीं होगा। तो क्या होता है, जब हमें लगता है कि यूरिनेशन को जाना है लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है, नहीं जा सकते, तब ये बाहर वाला जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर होता है ना, उसको हम लोग मतलब वॉलंटरीली विल पावर से हमारे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी एक हद तक कर सकते हैं, एक हद तक कर सकते हैं। उससे ज्यादा यूरिन भर गया, उसको बाद में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और ये हैबिट भी अच्छी नहीं है। कोई कोई लोग क्या करते हैं, मतलब बहुत ही आलसी भी लोग होते हैं, वो कितना भी उनको दर्द हो रहा है लेकिन वो मतलब जैसे कि सोए है, वो जाने की कोशिश नहीं करते, तो ये बहुत बुरी चीज है। या कोई कोई प्रोग्राम या कोई मतलब इसमें फंस जाते हैं, जैसे कि कोई लेक्चर हो लंबा वाला या कोई भी ऐसा काम हो, लेकिन आपको उसके पहले मिक्सचुरेशन करके आना है यूरिनेशन, या फिर आपको मतलब जो भी मतलब है प्रॉब्लम हो रही है तो आपको परमिशन लेके जाना है। सो ओके, दैट इज टॉक्सिक यूरिन, तो उसका बहुत बुरा बुरा असर पड़ता है बॉडी पे। डन, इतना क्लियर? Yes, Sir. Yes, ओके, sir. देखो, ये यूरेथ्रा सिर्फ मैमल्स में ही होता है। ओके, फीमेल में शॉर्ट होता है। देखो, फीमेल में ना यूरेथ्रा शॉर्ट होता है, इसलिए क्या होता है कि उसको इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बहुत सारे फीमेल को फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन होते रहते हैं बिकॉज देयर यूरेथ्रा इज वेरी शॉर्ट। ओके, एंड देयर एनल पैसेज एंड vaginal passage is also closed. इतना आपको क्लियर हो गया? अभी किडनी की बात करेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, किडनी की बात करेंगे। ओके, किडनी की सब डिटेल देखेंगे जितना भी आपको चाहिए, और हो सके तो हम लोग उसके आगे वाला भी पार्ट देखेंगे। हो जाएगा किडनी और बाकी का आगे आगे, आगे वाला पार्ट हो जाएगा। डन, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का 50% पार्ट हमने आज कर दिया।
किडनी है वो 50% और यूरिन फॉर्मेशन भी हम लोग कल देख लेंगे। ओके, आपको क्लियर है तो थम्स अप कर सकते हो अभी। यस, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। यस, कम ऑन फास्ट। ठीक है, अच्छा हम रुक जाते हैं अभी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू, गुड नाइट। Thank you, sir. Thank Good you, night, sir. Good sir. night, sir. Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट, गुड Thank you, नाइट। sir. sir. Yes, welcome and thank you also. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Good night, sir. Yes, yes, good night. Good night, sir. Good night.